ویلکم بیک۔ کراچی میں کپڑوں کی فیکٹری میں خوفناک آگ۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری سے اٹھنے والے شعلوں نے مزید 3 فیکٹریاں لپیٹ میں لے لیں۔ 4 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ متاثرہ فیکٹری سے 7 ملازمین کو زخمی حالت میں نکالا گیا۔ کئی افراد دیواریں پھلانگ کر باہر نکلے۔ آگ عمارت کے تہخانے میں لگی۔ فیکٹری میں لگی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ ایکڑ کے اوپر آگ کا دریا تھا۔ 4 فیکٹریوں میں مزید لگی تھی۔ کراچی میں کپڑوں کی فیکٹری میں خوفناک آگ۔ 4 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری کی آگ نے مزید 3 فیکٹریاں لپیٹ میں لے لیں۔ ایک عمارت پوری گر گئی۔ پھنسے افراد نے کھمبوں سے اتر کر جان بچائی۔ آگ عمارت کے تہخانے میں لگی تھی۔ متاثرہ فیکٹری کے 2 یونٹ تھے۔ بیچ میں دروازہ تھا۔ عمارت کا پہلے ایک اور پھر دوسرا حصہ بھی گر گیا۔ یہاں پرانے کپڑوں کی ری سائیکلنگ ہوتی تھی۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ 7 ملازم زخمی حالت میں نکالے گئے۔ یہ 3rd کیٹیگری کی آگ ہے۔ فیکٹری میں آگ کی شدت کی وجہ سے ایک حصہ تھا وہ مندرجہ ہو چکا ہے۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کا کہنا ہے آگ پر قابو پا کر کولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ امدادی سرگرمیاں 2 روز تک جاری رہیں گی۔ اس وقت آگ کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ آگ کو بجھا دیا۔ بلڈنگ کلیپس ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے اس کا جو ملبہ گرا ہے، تمام جو شعلے ہیں وہ بریک ہوئے ہیں۔ بس آگ تقریباً کنٹرول ہے۔ کولنگ میں تو 2-3 دن لگیں گے۔ متاثرہ فیکٹری مالک کا کہنا ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے سب سے مدد کی درخواست ہے۔ کوئی ایک بھی زخمی نہیں ہے، نہ ہی کسی کی کوئی کیجوالٹی۔ جب آپ کا شعلہ پہلا نکلتا ہے لوگ اسے لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، فیکٹری والے خود بھی، لیکن بہرحال یہ قدرتی آفات ہے، ان میں انسان کا ہاتھ بہت کم ہے۔ ریسکیو آپریشن میں 16 فائر ٹینڈروں اور 2 باؤزروں نے حصہ لیا۔ چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون AD خواجہ نے جائے حادثہ کا دورہ بھی کیا۔ کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ بجھانے کے آپریشن میں فائر بریگیڈ کے عملے کو 1 درجن سے زائد گاڑیوں کی مدد حاصل تھی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے علی محمد شر سے، بتائیے گا۔ پروسیسنگ زون لانڈھی میں آگ تو مکمل بند ہو گئی ہے، مگر اس وقت بھی ریسکیو کا کام جاری ہے۔ یہاں پر ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں۔ کولنگ کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ یہ سامنے ہی جو عمارت تھی، 4 منزلہ عمارت تھی، وہ زمین بوس ہوئی ہے، جس کا یہ ملبہ پڑا ہے۔ 4 منزلہ عمارت جو بڑے دھماکے سے گری تھی، یہ جو مین جگہ تھی، یہ گرنے کے بعد آگ پر قابو پانے میں آسانی ہوئی۔ ریسکیو 112 اور دیگر اداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کولنگ کا عمل 2 روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو زخمی ہوئے تھے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے اسپتالوں میں، اور ان میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ کی پاکستان کے شعبہ معدنیات میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے امریکہ سے درآمدات بڑھائے گا۔ پاکستان اور امریکہ کی حکومتی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے سے متعلق بات کریں گی۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے اہم نکات قومی اسمبلی میں پیش۔ وزارت تجارت نے بتایا امریکہ نے تانبا، لوہا، فولاد، ایلومینیم درآمد پر 50% ٹیکس عائد کیا ہے۔ ریفائنڈ تانبا 50% ٹیکس سے مستثنی ہوگا۔ پاکستان کے لیے امریکہ کو ریفائنڈ تانبا کی برآمد سود مند ہوگی۔ کم ٹیکسوں والی پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک بہتر رسائی ممکن بنائی جائے گی۔ امریکہ نے پاکستانی برآمدات پر ٹیکس 29 سے 19% کیا ہے۔ بھارت پر 50% ٹیرف آغاز ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا روسی تیل خریدنے والے ملکوں کو ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ بھارت پر مزید پابندیاں لگیں گی۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بھارت پر اضافی ٹیرف کے ذریعے اربوں ڈالر آئیں گے۔ روس سے تیل کی خریداری پر چین پر بھی مزید ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے روسی صدر سے جلد ملاقات کی امید بھی ظاہر کی۔ We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. So let's see what happens over the next. You're going to see a lot more. So this is a taste of. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. We did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. Had some very good talks with President Putin today. There's a good chance that there will be a meeting very soon. بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین جنگ روکنے کی امریکی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یوکرین میں روسی کارروائیاں امریکی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے مسلسل خطرے کا باعث بن رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے تجارتی مشیر پیٹر نووارو نے کہا ہے بھارت پر ٹیرف لگانا اقتصادی نہیں قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ Rationale for the India tariffs are very different
from the reciprocal tariffs. This was a pure national security issue associated with India's abject refusal to stop buying Russia oil. That India is the Maharaja of tariffs. भारतीय राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के रुकन राघव चड्ढा मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा वजीर आजम मोदी ने अमेरिका को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिकी टैरिफ से मईशत को धचका लगेगा, लाखों अफराद का रोजगार खत्म हो जाएगा, शरह नमू में 50% तक कमी हो सकती है। भारतीय मसनूआत के लिए अमेरिकी मंडियों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रम्प टैरिफ लागू होते हैं, जो कि हो गए हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। हमारा जीडीपी 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम गिरेगा। मिलियंस ऑफ जॉब्स भारत में छीनी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, कारखाने बंद होंगे और भारत में उत्पाद किए गए, प्रोड्यूस करे गए इंडियन कमोडिटीज ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी भी ताजिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। एफबीआई ने सेल्स टैक्स की शक्ल 37A तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में बताया गया है इनलैंड रेवेन्यू के अरकान की मंजूरी के बगैर कमिश्नर तहकीकात शुरू नहीं कर सकेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने कारोबारी बरादरी को एफबीआर के काले कवानीन से बचा लिया। साबिक निगरां वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते कि एफबीआर ने कारोबारी बरादरी के मुतालबे पर फाइनेंस एक्ट में तरमीम कर दी। 18 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कारोबारी शख्सियात की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। कारोबारी शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से कबल कमेटी की मंजूरी लाजमी है। जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने के लिए पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स भी इंतहाई पुरअज़्म हैं। कहते हैं वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। रुबीना अलवी की रिपोर्ट। अगस्त को पाकिस्तानी कौम आजादी की खुशी का दिन मनाती है। हर शहरी की तरह शोबिस से ताल्लुक रखने वाले जगमगाते सितारे भी अपने मुल्क के आजाद होने का जश्न निहायत पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। हक का नारा लगाना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को इसकी मुबारकबाद मिलनी चाहिए, दुनिया भर तक इसकी गूंज जानी चाहिए। ये वाला जो जश्न आज़ादी है इस दफ़ा वाला, इसकी तो एक और खुशी है जब हमने रीसेंट इंसिडेंट जो हुआ पाकिस्तान इंडिया वाला वो हम जीते हैं। जश्न आज़ादी तो हमारी दोबाला हो गई है और अब यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हमारे वतन को हमेशा शादो आबाद रखे। इसको दुनिया में बहुत अच्छे नंबरों पे जा रहे हैं। आप लोगों को तावन चाहिए तो ये मुल्क और ऊपर जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ही खास दिन होता है, हर पाकिस्तानी के लिए बहुत खास दिन होता है। अदाकार अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ पैगामात देकर खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। फनकारों ने भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए अपना जज्बा दिखाया और वो अपने बचपन की याद को भी इस बहाने ताज़ा कर लेते हैं। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाक पतन में छापे के दौरान खातून को थप्पड़ मारने वाला ASI गिरफ्तार। इसी पर मजीद जानेंगे। इमदाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया थाना सदर के इलाके 39 SP में पेश आया है, जहां इजाज नामी पुलिस एहलकार ने खातून को दौरान गिरफ्तारी के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर DPO पाकपतन जवेद इकबाल चदर ने वाकये का सख्त नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर ASI को गिरफ्तार करवा लिया है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उनका कहना था कि किसी भी पुलिस एहलकार को खतून पर तशद्दुद करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नौकरी का झांसा देकर बुलाया और बेहोश करके गुर्दा निकाल लिया। रावलपिंडी में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी का इंकशाफ। पुलिस ने 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, 6 फरार हो गए। थाना रवात की हुदूद में गश्त पर मामूर एहलकारों ने बंगले पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान स्ट्रेचर से बंधा शख्स बाजियाब कराया गया। बाजियाब हनान खान ने बताया उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। मुलजिमान ने बंगले में खुफिया ऑपरेशन थिएटर बना रखा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी FPCCI की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को अहम रोल प्ले करना चाहिए। आपको सब चीजों पे नजर रखनी चाहिए। जितनी अहम मीटिंग्स बाहर से आए हुए डेलीगेशन में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की होती हैं उसमें FPCCI का रोल बहुत अहम होना चाहिए। बाहर से आए हुए बिजनेसमैनों के साथ हमारे बिजनेसमैनों की मीटिंग्स का सारा जुम्मा फेडरेशन के जुम्मे होना चाहिए ताकि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन मीटिंग्स कराई जा सके। आज इस मुल्क में सभी लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे। जैसे हमने इस रीजन में, इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती को खत्म करके 10 मई को आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, मार्का हक, बुनियानुल मरसूस, क्यों हम मना रहे हैं? क्योंकि हमने ये साबित किया है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, मजबूत हाथों में है, और जब वक्त आया तो पूरी कौम ने एक होकर, एक पेज पर होकर पूरी दुनिया को और भारत को पैगाम दिया कि इस परचम के साए तले पूरी कौम एक है। तो आप सोचें कि ये एक होने में कितना बड़ा फायदा है कि हम अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन से जीत गए जज्बे से और उसकी एक होने की ताकत से। तो हम तरक्की करने में हमें कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह ताला। आज हम जश्न मना रहे हैं मार्का हक दिफाई तौर पर मजबूत होने का। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगला जो मार्का हो वो मार्का मईशत हो जो हमारे, और हम सब मिलकर पूरे मुल्क में मार्का मईशत सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये मुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पास बेहतरीन बिजनेसमैन मौजूद है। हमारे शौकत भाई बैठे हुए हैं, हमारे बाकी सारे भाई बैठे हुए हैं, जो कि यहां पर हमारी बहनें बैठी हैं। देखें ना, ये सब वुमेन्स चैम्बर चला रही हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हमारी बहनें और बाजियां जो हैं वो आगे, मैं तो देखें MQM के तमाम लवाजमा साथ लेके चलता हूं। जैसे फारूक भाई भी साथ चल रहे हैं, आजकल अनीस भाई को भी साथ लेके चल रहा हूं। और मैंने एक जगह कहा था कि हल्का नहीं लेना, सारा सामान साथ लेके चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि MQM जो है वो, क्योंकि ये क्लेम करती है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एक्निक ने हैदराबाद सक्खर 306 किलोमीटर मोटरवे तामीर की मंजूरी दे दी है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे को 5 सेक्शन में मुकम्मल किया जाएगा। तफसीलात बताएंगे संजय साधवानी। बताइए संजय। जी बिल्कुल, ये एक्निक का इजलास हुआ था। एक्निक के इजलास में सिंध वालों के लिए अच्छी खबर है कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 306 किलोमीटर जो तामीर है उसकी मंजूरी दे दी है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे को 5 सेक्शन में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में 3 सेक्शन पर काम होगा, जिसकी फंडिंग इस्लामी तरक्याती बैंक करेगी। मजमूई तौर पर इस पर 363 अरब रुपए जो है वो लागत आएगी। 180 किलोमीटर रोड जो है सड़क वो इस्लामी तरक्याती बैंक के फंड से मुकम्मल की जाएगी। इसके अलावा बाकी रकम जो है वफाकी हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देगी, जिसके बाद बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। कराची के अवाम से वादा किया था इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, काम करके दिखाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि नई हब केनाल की तामीर के बाद पुरानी केनाल की मरम्मत करेंगे। 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी वापडा से मंजूर कराया। मंगूपीर, औरंगी, किमाड़ी और बल्दिया टाउन को फायदा होगा। कराची की आवाम से वादा किया था कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, करके दिखाएंगे। सालों से सुन रहे हैं K4 आएगा, पानी आएगा। 20 साल गुजर जाने के बाद भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी कराची शहर के लिए अप्रूव किया गया। कराची वालों को पानी तो नहीं मिल रहा, नई कैनाल बनाएंगे जो कि हब के पंपिंग स्टेशन में पानी को गिराएगी। 20 करोड़ गैलन डेली पानी पहुँचाने की कैपेसिटी आपके अंदर हो गई। फायदा होगा मंगोपीर की आवाम, औरंगी की आवाम, किमाड़ी की आवाम। 13 अगस्त 2025 आज से 6 दिन बाद बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह
कर दिया जाएगा। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर मुमलिकत दाखिला उमूर तलाल चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वाज़ेह करना होगा वो दहशतगर्दों के साथ है या रियासत के साथ। एहतजाज सबका हक है लेकिन आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज किया जाए। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वजीर और वजीर आला भत्ता दे के जिंदा हो, भत्ता दे के रहते हो, वो क्या लड़ेंगे? फैसला करें, दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये सियासत नहीं चलेगी। 14 अगस्त को एहतजाज का अंजाम 5 अगस्त से भी बुरा होगा। MNA शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जब तक पार्टी उनसे बात नहीं करेगी और अलीमा खानम को सियासी मामला से अलग नहीं किया जाएगा वो किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे। 14 अगस्त का एहतजाज 5 अगस्त से भी बुरी शक्ल में होगा। मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक पार्टी मेरे साथ मामलात में नहीं करती है, जब तक फरमा अलीमा खानम जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है साइड पे नहीं हो जाती है। मना किए उनको लेकिन बाहर आके पूरी पार्टी वो चला रही है। सलमान अकरवाजा उस वक्त कहाँ था जब 9 मई के बाद हम तहरीक चला रहे थे? किस तरह मैं उसको सेक्रेटरी जनरल मान सकता हूँ जब वो इस तरह बन नहीं सकता है? इस तरह इनमें कोई उसकी गुंजाइश ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बनाया ना उनको। मैं कोई अंधा पैरोकार तो नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं जज रहा हूँ, पार्लियामान का मेंबर हूँ, मुझे आप कायल करेंगे तो मैं मानूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली और कारकुनों ने मुलाकात की। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के लिए वो सारी तवानाइयां लगा देंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा जाती मफादात की खातिर पार्टी मफादात को पीछे नहीं कर सकते। पार्टी कारकुन और जियाले खुद को तन्हा न समझें, जब तक गवर्नर हाउस में वो हैं पार्टी का दिफा करते रहेंगे। कुदरती आफात और मुश्किलात में फंसे अफराद से मिलना और उनकी दाद रसी करना पीपल्स पार्टी का शेवा है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में 9 मुहर्रम को लापता अयाज अभी तक नहीं मिल सका। अयाज के अहल खाना मदद के लिए ARY न्यूज के दफ्तर पहुंच गए। लापता होने से एक रोज पहले बिल ज्यादा आने पर मालिक मकान से झगड़ा भी हुआ था। ज्यादा आ गया था। मेरे शोहर ने बोला मकान मालिक को कि बिल ज्यादा आया, आप लोगों ने मोटर वगैरह चलाया, इस वजह से ना मकान मालिक उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे मेरे शोहर पर। तो ऐसे हाथापाई हो रही थी। अचानक नीचे गए तो उस वक्त से जो पैसे वापस करने गए ना वहाँ से दोबारा नहीं आए। वो सब कुछ शक मकान मालिक के ऊपर था, शायद इससे झगड़ा हुआ। रात को सुबह ये गायब हो गया। लेडीज पुलिस भी आई थी एक, वो मुझे एक कमरे में लेके गई, पूछताछ कर रही थी। मैंने सब बातें बता दिया उसको। कोने पे कुत्ता था व्हाइट कलर का, ऐसे से बहुत वो पुलिस वाले मुझ पर मतलब थोड़ा हाथापाई भी हुआ है हमारा। उसने मुझे 2 दिन थप्पड़ भी मारा है। इस बारे में मजीद जानते हैं सलमान लोधी से। सलमान, क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? देखिए, पुलिस ने इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं की। इनसे थाने के अंदर जबरदस्ती दरखास्त लिए कि खातून का दस्तखत कराएं जिसमें ये दावा कर रही है कि इसका शौहर इससे लड़ झगड़ के चले गया। अलबत्ता 2 महीने हो गए ना ही इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ। खातून ने IG सिंध को दरखास्त लिख दी, DIG साउथ को दरखास्त लिख दी। खातून ये कहती है जब वो घर वालों के साथ थाने जाती है तो इन्हें डराया धमकाया मारने की धमकियां दी जाती हैं। एक इंकशाफ किया कि तो सलमान क्यों डराया धमकाया जाता है, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं कर रही पुलिस? देखिए, ये मुतासरा अफराद ये कहते हैं मालिक मकान इलाके का बाअसर शख्स है जिसके रास्ते में आकर पुलिस इनके शौहर को उल्टा तलाश नहीं कर रही और उसी से झगड़े के बाद से वो लापता हुआ। ये किराएदार मालिक मकान है, ये किराएदार बिजली के बिल आने पर मालिक मकान से झगड़ा हुआ था। क्योंकि ये खातून ये भी कहती है जब भी ये थाने जाती कंप्लेन करने, बल्कि वो पुलिस के थाने के अंदर मौजूद होता है, तफ्तीशी अफसर के कमरे में भी वहाँ पे मौजूद होता है, वहाँ पर भी इनको डरा धमका देता है। तो ये बासर शख्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा मुतासरीन को ही डराया धमकाया और केस वापस लेने की अपील की जाती है। बस इनका शौहर आजाद कर दिया जाए, घर लौटा दिया जाए, तमाम चीजें वापस कर लेगी, लेकिन इनका शौहर अब तक बाजियाब नहीं हो रहा है, जिससे पुलिस भी कोई काम ही नहीं कर रही। ठीक है, सलमान लोधी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं से सोना निकालने के ठेकों में अरबों रुपए की मुबैना खुर्दबुर्द। नैब जराये का कहना है कि निजामपुर में सोना निकालने का ठेका 6 के बजाय 4 अरब रुपए में दिया गया। मनपसंद अफराद को कम कीमत पर ठेका देकर सरकारी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया।
دریائے سندھ میں نظام پور، سوابی، کوہستان، کوہاٹ سمیت دیگر علاقوں سے سونا نکالا جاتا ہے۔ نیب خیبر پختونخوا نے محکمہ معدنیات سے ریکارڈ قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد ملوث افراد اور اہلکاروں کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ امریکہ اور روس کے صدور میں آئندہ ہفتے ملاقات طے پا گئی۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر اہلکار نے تصدیق کر دی ہے۔ دونوں صدور کے درمیان ملاقات کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ روسی ترجمان کا کہنا ہے امید ہے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔ ملاقات کی جگہ پر اتفاق ہو گیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی روسی ہم منصب سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR9 نیوز۔